Good morning, everyone. Till yesterday's class, we have completed till exercise 5.2 of chapter 5 algebraic expressions. So today we will start with the new topic addition of algebraic expressions. अगर algebraic expressions दिए हुए हों तो उनको add करना है, ठीक है? There is only one rule for that. What is the rule? Only like terms of algebraic expressions can be added. Algebraic expressions में like terms भी होती हैं, ठीक है। दो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस अगर आपको दिए हुए हैं तो मे बी उसमें लाइक टर्म्स हो और मे बी नॉट, तो वो लाइक टर्म्स हमें ऐड करनी है। अनलाइक टर्म्स कैन नॉट बी एडेड, ठीक है। एक और स्टेटमेंट में इसमें ऐड कर रही हूँ, अनलाइक टर्म्स कैन नॉट बी एडेड। अनलाइक टर्म्स को ऐड नहीं करते हैं, दे विल बी रिटन एज इट इज, उनको एज इट इज लिखना होता है, ठीक है। सो only like terms of algebraic expressions can be added, unlike terms cannot be added. Okay, it will be more clear to you with these examples. Fine. So example 1 is 12a and 5a plus 7b. Two algebraic expressions are given to you. The first is 12a and the second is 5a plus 7b. The first thing you have to do is that put plus sign between the two given algebraic expressions. So in the first step you can see I have just put here plus sign between 12a and 5a plus 7b. Okay, the first expression is this and the second is this. मैंने सिर्फ plus sign लिखा है दोनों के बीच में. Why? Because we have to add them. We are doing addition of algebraic expressions. Okay, so now what you have to do, just find like terms and add them. बस यही करना है. It's very simple. You know 12a and 5a both are like terms as they are having same variable parts a and a. No other variable is over there except a and their powers are also same. So 12a and 5a both are like terms. So we have to add these terms. You can see 7b is unlike term because b variable is not present in first and second term. So it will not be added. So 12a plus 5a को ऐड करने के लिए राइट द वेरिएबल पार्ट a एज इट इज. वेरिएबल पार्ट आपको लाइक टर्म्स का एज इट इज लिखना है हमेशा, and add their constants only. So constants are plus 12 and plus 5 and it will be plus 17. Okay, 12 plus 5 is 17. So 17a is the result for the addition of these like terms, and write 7b as it is. Don't leave it. ऐसा नहीं कि मैम ये अनलाइक टर्म है तो इसको नहीं लिखना है, नहीं, इसको लिखना है बट इट विल नॉट बी एडेड. It will be just written with the answer in the answer. Okay, plus 7b. So 17a plus 7b is the answer for this addition. Okay, second example, xy and 6yz. Two expressions are given to you, xy and 6yz. So what is the first thing? We just have to write plus sign between them. Here I have written plus sign, xy plus 6yz. Okay, so can you see here, these both are unlike terms. दोनों unlike terms हैं. इसका वेरिएबल पार्ट है xy और इसमें वेरिएबल पार्ट पे yz लिखा हुआ है. क्या चीज डिफरेंट है दोनों में? The variables x and z are different. So these are unlike terms. We cannot add them. So this will be the answer. इसे फर्दर हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही अनलाइक टर्म्स है और इनको आगे ऐड नहीं किया जा सकता. ओके, नाउ थर्ड एग्जाम्पल, x square y minus 2xy plus 3z and 4x square y plus 7yx minus 5z square. Students, there are two methods to do addition of algebraic expressions. First is horizontal method and the second is vertical method. So both the methods are different but their answers will be same for the same question. ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में इट्स अप टू यू कि कौन सा मेथड आप यूज करते हो. मैं आपको दोनों ही मेथड्स बता रही हूँ. इन दोनों एग्जांपल्स में भी हम ये दोनों मेथड्स यूज कर सकते हैं. ठीक है, ऐसा नहीं कि मैम इसमें तो आपने एक ही यूज किया है, हम दोनों ही यूज कर सकते हैं. ओके, आप इनको अपने घर पे नोटबुक में करके देख सकते हैं विद दी वर्टिकल मेथड ऑल्सो. ये मैंने हॉरिजॉन्टल मेथड यूज किया है. नाउ आई विल टेल यू हाउ टू सॉल्व, how to add algebraic expressions with horizontal method. So the first thing will be the same, just put plus sign between the given algebraic expressions. First expressions I have written at first place, at second expression I have written at second place, and I have put
प्लस साइन बिटवीन दीज टू एक्सप्रेशंस एंड कीपिंग देम इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स मैंने इसलिए लगाए हैं जिससे आपको थोड़ा डिफ्रेंशिएट हो जाएगा कि फर्स्ट कौन सा है और सेकंड कौन सा। दोनों के बीच में प्लस साइन लगाया है। देन क्या किया था, यहाँ पर लाइक टर्म्स को एक साथ लिखा था। यहाँ भी लाइक टर्म सर्च करनी है, हमें फाइंड करनी है। यस, हमें ऐड करने हैं लाइक टर्म्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टू ऐड लाइक टर्म्स वी हैव टू राइट देम टुगेदर। हॉरिजॉन्टल मेथड क्यों बोलते हैं बेटा इसको? बिकॉज इट इज इन द वे ऑफ स्लीपिंग लाइन। यू नो स्लीपिंग लाइन इज हॉरिजॉन्टल ऑलवेज। ये स्लीपिंग लाइन की पोजीशन में रखा हुआ है पेन, तो इट इज हॉरिजॉन्टल मेथड, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये सभी स्टेटमेंट्स जो स्टेप है इसके स्लीपिंग लाइन की पोजीशन में लिखे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। हेंस इट इज हॉरिजॉन्टल मेथड, ठीक है। सो हॉरिजॉन्टल मेथड में भी क्या करना है, लाइक टर्म्स को एक साथ लिखना है। नाउ एक्स स्क्वायर वाई के लिए लाइक टर्म कौन सी होगी बताइए मुझे, विच वन इज द लाइक टर्म फॉर एक्स स्क्वायर वाई? देती हूँ। So in this step we have to write like terms together. You can see 4x square y and x square y are like terms. Both are positive. So I have written them together first. Okay. Then find or search the like term for minus 2xy. It will be plus 7yx because variables are same. xy xy only their orders are different. ऑर्डर दोनों के चेंज है। इसमें x पहले लिखा है, y बाद में लिखा है। इसमें y पहले लिखा है, x बाद में लिखा है, ठीक है। बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वेरिएबल्स तो सेम है ना, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। yx इज सेम एज xy, yx इज इक्वल्स टू xy एंड xy इज इक्वल्स टू yx। ओके, सो 7yx and minus 2xy are like terms. I have written them together with their signs. मैंने आपको पहले ही बोला है टर्म्स हमेशा साइन के साथ लिखी जाती हैं। अब हमारे पास only two terms are left, that is 3z and minus 5z square. You can see these both are not like terms, they are unlike terms, ठीक है। इसमें वेरिएबल है z, इसमें है z स्क्वायर। वेरिएबल पार्ट सेम नहीं है ना, पावर डिफरेंट है। सो बोथ आर unlike terms, so just write them as it is at the end. 3z minus 5z square. Yes, good Kirti. So now we will add them. For adding them, you know what you have to do. Write variable part as it is of like terms. x square y और 4x square y का variable part है x square y, दोनों में सेम है तो just write it as it is x square y, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऊपर एक्स स्क्वायर वाई के साथ कोई कांस्टेंट शो नहीं हो रहा है, तो इट विल बी 1 ऑलवेज। व्हेनेवर देयर इज नो कांस्टेंट रिटर्न विद द वेरिएबल पार्ट, इट विल बी 1 ओनली। ओके, यस, गुड राघव। सो 1 plus 4 is 5. It will be 5x square y. Now add minus 2xy and plus 7yx. हम इन्हें ऐड नहीं कर सकते बिकॉज दोनों के साइंस ऑपोजिट हैं, एंड यू नो व्हेन द साइंस आर ऑपोजिट द नंबर्स आर गेट सब्ट्रैक्टेड। नंबर सब्ट्रैक्ट होते हैं जब साइंस ऑपोजिट होते हैं। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, सो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 minus 2 is 5, and because the bigger number is positive it has plus sign, so in the result it will be plus sign over there. So plus 5xy will be the answer for this. No, it will not be minus अक्षिता, it will be plus बेटा, because जो बिगर नंबर है 7 उसका साइन है प्लस, ठीक है। तो प्लस साइन आएगा यहाँ, प्लस 5xy। यस, सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दीज टू लाइक टर्म्स। नाउ कम टू द अनलाइक टर्म्स। हम इन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते बिकॉज दे आर अनलाइक टर्म्स, सो जस्ट राइट देम एज इट इज। जो भी अनलाइक टर्म्स होंगी उनको एज इट इज लिखना है, उनका कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। तो ट्राई कीजिए उनको किसी और अदर टर्म में ऐड करने की, ना ही ट्राई कीजिए उनको रिमूव करने की, ठीक है। आंसर में से आप रिमूव नहीं कर सकते हो उसको एज इट इज लिखना है। ओके, दिस इज द हॉरिजॉन्टल मेथड। नाउ वर्टिकल मेथड। हॉरिजॉन्टल मेथड में आपने देखा मैंने स्लीपिंग लाइन की पोजीशन में रोज की पोजीशन में आंसर लिखा है, रोज की पोजीशन में ही लाइक टर्म्स को एक साथ लिखा है। वर्टिकल मेथड में हमें वर्टिकली सॉल्व करना है, वर्टिकली लिखना है इन दी कॉलम फॉर्म। ओके,
In vertical method we will use columns to write like terms together. यहाँ पे मैंने horizontally like terms को एक साथ लिखा है, यहाँ पे columns में like terms को एक साथ लिखना है. So उसके लिए what will be the process? Write the first algebraic expression. सबसे पहले हमें algebraic expression जो first number पे दिया हुआ है वो लिखना है. ठीक है, लिख दिया मैंने यहाँ x square y minus 2xy plus 3z. Now find their like terms in the second expression and write them according to their columns. ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई का लाइक टर्म है 4x स्क्वायर वाई, तो मैंने इन दोनों को सेम कॉलम में लिख दिया. माइनस 2xy का लाइक टर्म है 7y(x), उन दोनों को भी सेम फॉर्म में लिख दिया. यहाँ पे मैंने 7xy लिखा है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, y(x) xy सेम है, y(x) लिख दोगे तो भी आंसर में यही आएगा, चाहे y(x) लिख दीजिए चाहे xy लिख दीजिए. ठीक है, अब देखिए प्लस 3z और माइनस 5z स्क्वायर लाइक टर्म्स नहीं है ना, तो इनको मैंने डिफरेंट कॉलम्स में लिखा है, सेम कॉलम में नहीं लिखा. ये देखिए, अगर आप चाहें तो इसको इस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लाइक दिस. ठीक है, 1 2 3 4 कॉलम्स आर हेयर. पहले कॉलम में एक्स स्क्वायर वाई के लाइक टर्म्स लिख दिए, सेकेंड कॉलम में एक्स वाई वाले लाइक टर्म्स लिख दिए. थर्ड में आप देख सकते हैं 3z इज द थर्ड टर्म इन द फर्स्ट एक्सप्रेशन, उसका कोई भी लाइक टर्म प्रेजेंट नहीं है यहाँ पर, इसलिए उसको मैंने डिफरेंट कॉलम में लिखा है. ठीक है, उसके नीचे वाला स्पेस ब्लैंक छोड़ा है क्योंकि सेकेंड एक्सप्रेशन में उसका कोई लाइक टर्म नहीं है, और मैंने अभी आपको बताया कि कॉलम्स में लाइक टर्म्स को एक साथ लिखना है. ठीक है, अब देखिए एक और टर्म बच गई सेकंड एक्सप्रेशन में माइनस 5z स्क्वायर. यह बात आपको स्पेशली ध्यान रखनी है बेटा, कोई भी टर्म लीव नहीं होनी चाहिए, रिमूव नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन में से. ध्यान रखना है कि उनको सभी को लिखना है हमें. माइनस 5z स्क्वायर भी अनलाइक टर्म है, तो उसको सेपरेट करके फोर्थ कॉलम में लिख दिया. इन दोनों को मैं सेम कॉलम में नहीं लिख सकती बिकॉज दीज बोथ आर अनलाइक टर्म्स. टर्न ऑफ योर स्पीकर, टर्न ऑफ योर स्पीकर. सो मैंने आपको अभी बताया था वेदर दी टर्म्स आर लाइक और नॉट. अनलाइक टर्म्स होंगी वो भी आपको क्वेश्चन में लिखना है, यू कैन नॉट रिमूव दैम. ठीक है, सो प्लस 3z और माइनस 5z स्क्वायर मैंने डिफरेंट कॉलम्स में क्यों लिखे हैं, बिकॉज दीज आर नॉट लाइक टर्म्स. ठीक है, नाउ इफ यू वांट टू सॉल्व देम कॉलम वाइज. ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई विल कम एज इट इज द वेरिएबल पार्ट, its constant is 1, its constant factor is 4, 1 plus 4 is 5. Put addition sign here because we are adding them. In the second column xy will come as it is, the variable part is common in both the terms. Minus 2 plus 7 is plus 5. Okay, plus 3z only come in third column में सिर्फ plus 3z ही लिखा है तो it will come as it is. फोर्थ कॉलम में ओनली माइनस 5z स्क्वायर लिखा है, सो इट विल ऑल्सो कम एज इट इज. सो दिस विल बी द आंसर. यू कैन सी इन बोथ द मेथड्स आंसर इज सेम, बट व्हाट इज द डिफरेंट? here we have used the sleeping lines and here we have used standing lines or columns. Here we are using rows, here we are using columns. It is horizontal method, it is vertical method. सिर्फ यही difference है, बाकी सब कुछ same है. Okay, now exercise 5.3 question 1 is add. These terms or expressions are given to you, you have to add them. It is given in the question. Okay, B part I am doing, A and C part you have to do in today's homework. So first of all what we have to do, क्या करते हैं हम सबसे पहले प्लस साइन पुट करते हैं इन सबके बीच में. तो 2x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में मैंने क्यों लिखा है, बिकॉज इट इज नेगेटिव. इसे सॉल्व करके मैं आगे लिखूंगी माइनस. ठीक है, प्लस 8y स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में अगेन माइनस 7 स्क्वायर बिकॉज इट इज नेगेटिव, इट हैज डिफरेंट साइन. ठीक है, नाउ ओपन दीज ब्रैकेट्स. 2x स्क्वायर plus minus will be minus 3y square as it is, plus 8y square again plus minus will be minus 7x square as it is. Now we have to find like terms in these. 2x square का like term है minus 7x square, उनको मैंने एक साथ लिख दिया. minus 3y square का like term है plus 8y square, उनको एक साथ लिख दिया. Again remember one thing, it is you must remember that write terms with their signs if you are changing their position.
यहाँ 7x² जो है वो फोर्थ नंबर पे लिखा है, यहाँ मैं उसको सेकंड नंबर पे लिख रही हूँ क्योंकि मुझे लाइक टर्म्स एक साथ लिखनी है, लेकिन साइन उसके साथ आएगा, माइनस साइन। ऐसा नहीं साइन आपने वहीं पर छोड़ दिया, 7 को यहाँ प्लस कर दिया, नो, टर्म के साथ में साइन आएगा, ठीक है। अगेन -3y² plus 8y² both are like terms, so I have written them together. Now what is the method? Write the variable part as it is. X² is the variable, I have written it as it is, and 2 minus 7 will be -5. दोनों के साइंस ऑपोजिट है, सब्ट्रैक्ट होंगे, 7 में से 2 जाएगा, 5 आएगा। एंड क्योंकि बड़ा जो नंबर है, बिगर नंबर है 7, वो नेगेटिव है, तो आंसर में भी माइनस साइन आएगा। यहाँ पे आप अगेन देख सकते हैं y² वेरिएबल पार्ट सेम है, एज इट इज लिख दिया। 3 नेगेटिव है, 8 पॉजिटिव है, दे विल गेट सब्ट्रैक्टेड, सो 8 minus 3 will be 5, and the number which is bigger is having positive sign, so in the answer plus sign will come over there. So -5x² plus 5y² is the answer for this addition. Okay, so this is the B part for question 1 of exercise 5.3. This was your classwork for today, students. The homework is 25 September, exercise 5.3, question number 1A and C part you have to do in the homework. Okay, B part we have covered in the classwork, A and C part you have to do in the today's homework. Thank you. Now I will tell you how to solve the homework questions I have given in today's homework. So question 1A part is x square, 5x², 7x² minus 2x². What we have to do? Just put plus sign between them. Plus sign लगा दिया मैंने. Then x², both these four are like terms already. कोई unlike term है ही नहीं इसमें, तो चारों को ही ऐड करना है according to their sign. x² कॉमन वेरिएबल पार्ट है, उसको लिख लिया x². नाउ उनके कॉन्स्टेंट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है. x² के साथ यू कैन सी नो कॉन्स्टेंट इज कमिंग ओवर देयर, सो इट विल बी 1 ओनली. So 1 plus 5 plus 7 minus 2. This will be the constant part, and when you will solve them, you will get 11. Okay, so 11x² will be the answer for that. C part, 5xy minus 3xy 7x²y. First, in the first step, I have just put plus sign between them. Then 5xy and plus minus will be minus, 3xy both are like terms, they will get added or subtracted, and 7x² will be written as it is because it is unlike term और ये ऐड नहीं होगा, तो इसको as it is लिखना है. xy दोनों में कॉमन है, as it is लिख दिया. 5 minus 3 will be 2, तो 2xy plus 7x² will be the answer for the C part. Okay, today's class is over now. Thank you.